نئے عہد نامے میں سے پولس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط اور اس کا چوتھا باب اس کی 13ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک، یعنی اس چیپٹر کے آخر تک ہم خدا کے کلام کی تلاوت کو سنیں گے۔ 13ویں آیت سے یہ لکھا ہے، اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، پس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع کو جلایا وہ ہم کو بھی یسوع کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا، اس لیے کہ سب چیزیں تمہارے واسطے ہیں، تاکہ بہت سے لوگوں کے سبب سے فضل زیادہ ہو کر خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری بھی بڑھائے۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد باری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، کرنتھس شہر کی اگر ہم بات کریں تو اعمال کی کتاب کے 18ویں باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ پولس رسول جب وہاں پر گئے تو تقریباً 1.5 سال یعنی 18 ماہ پولس رسول نے اس شہر میں گزارے اور 1.5 سال اس کلیسیا میں خدمت گزاری کا کام کیا۔ چونکہ پولس رسول کا طریقہ ہی یہ تھا کہ وہ کسی جگہ پر جب کلیسیا قائم کرتا کچھ وقت وہاں پر رہتا، ان کو خدا کا کلام سناتا، سکھاتا، سمجھاتا اور پھر آگے چلا جاتا تاکہ کسی نئی جگہ پر ان لوگوں کو کلام سنائے جو ابھی تک خدا کے کلام سے واقف نہیں ہیں۔ اور پولس رسول چونکہ اس کی مشنری خدمت تھی، چرچ پلانٹ کرنے والا تھا، کسی بھی جگہ کلیسیا قائم کرتا، وہاں پر کسی کو مقرر کرتا، خود آگے چلا جاتا۔ کرنتھس میں اس نے 1.5 سال خدمت کی۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نے ایک خط پہلے بھی لکھا جو بائبل مقدس میں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کرنتھیوں کے نام پولس کا پہلا خط۔ اب ہوا یہ کہ پولس رسول اور کلیسیا کے کچھ لوگوں کے تعلقات تھوڑے کشیدہ ہو گئے، کچھ تعلقات میں گڑبڑ آ گئی۔ کلیسیا کے کچھ لوگ پولس رسول کی رسالت پر، اس کی خدمت پر سوال اٹھانے لگے، اور آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص بالخصوص جو خدمت میں ہے، جو لوگوں کی روحانی فکر کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ لوگوں کی روحیں ہلاک نہ ہوں اور وہ دیانتداری سے، سچائی سے، محنت کے ساتھ خدا کے کلام کو سناتا اور سکھاتا ہے، اور اس کی نیک نیتی پر شک کیا جائے، اس کی دیانتداری پر شک کیا جائے، اس کی محنت پر شک کیا جائے، اس کی خدمت پر شک کیا جائے، تو کیا انسان خوش ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ فطری بات ہے کہ انسان جب اتنی محنت سے خدمت کرتا ہے اور اس کی خدمت پر ہی سوال اٹھائے جائیں، اس کی نیک نیتی اور دیانتداری پر شک کیا جائے، تو مایوسی آ سکتی ہے، انسان کے اندر بے دلی آ سکتی ہے کہ میں تو
इतनी मेहनत से काम कर रहा हूँ, मैं तो इतनी मेहनत से काम कर रही हूँ, मेरी नीयत भी ठीक है, लेकिन लोग मेरी खिदमत पर सवाल उठाते हैं, एतराज़ करते हैं, तो मायूसी और बेदिली आ सकती है। जब पौलुस रसूल के साथ भी ऐसी कैफियत हुई तो पौलुस रसूल ने इस दूसरे खत को लिखा ताकि कलीसिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करे और अपनी खिदमत का दफा कर सके, अपने बारे में जो सवालात उठ रहे हैं उनका जवाब दे सके। और ख़ास तौर पर उसका ये भी मकसद था कि कलीसिया की रहनुमाई करे ताकि वो गलत अकीदे और गलत बातों की तरफ ना चले जाएं। ये आयात जिनका हमने मुताला किया है, इन आयात को समझने के लिए एक मजमून जो इन आयात की रोशनी में हमारे सामने आता है वो है रूहानी दिलेरी। हमारा मजमून क्या है जिसके तहत आज हम सीखेंगे? रूहानी दिलेरी। पौलुस रसूल इन सारे हालात के बावजूद वो अपने अंदर मुतमिन था, खुदा के कलाम को करने के लिए दिलेर था, वो बिल्कुल मायूस और नाउमीद नहीं था। आज अगर हम बेदिली की बात करें, मायूसी की बात करें, नाउमीदी की बात करें, तो बहुत सारे लोग आज इस मुसीबत में हैं, इस तकलीफ़ में हैं कि वो या तो नाउमीद हो चुके हैं या वो बेहद मायूस हैं ज़िंदगी से, उनको ज़िंदगी एक बोझ लगना शुरू हो गई है। और अफसोस कि कई दफ़ा इंसान इस सोच तक पहुंच जाता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लूं। खुदकुशी। चंद माह पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें लाहौर के शायद एक पादरी साहब ने खुदकुशी की थी, मायूस होकर, नाउमीद होकर ज़िंदगी से। और आज जब हम कलीसियाओं को देखते हैं तो लोग बेरोजगारी की वजह से, अच्छी जॉब ना मिलने की वजह से वो मायूस हैं, बेदिल हैं, नाउमीद हैं, या ख़ानदानी मसाइल की वजह से इतने मायूस हो चुके हैं, इतने बेदिल हो चुके हैं कि वो ज़िंदगी को एक बोझ समझना शुरू हो गए हैं। शायद मियाँ बीवी के ताल्लुकात आपस में अच्छे नहीं होते, कई दफ़ा बीवी मर्द के जुल्म से तंग होती है और वो ज़िंदगी को बोझ समझती है, कई दफ़ा मर्द बीवी और बच्चों के रवैयों से वो खुश नहीं होते और ज़िंदगी को बोझ महसूस करते हैं, कई दफ़ा माँ बाप की वजह से बच्चे वो ज़िंदगी से ऐसे मायूस और बेदिल होते हैं कि वो ज़िंदगी को एक तकलीफ़ समझना शुरू करते हैं, वो बेदिल, नाउमीद और मायूस हो जाते हैं। ऐसे में खुदा के कलाम का ये हिस्सा हमारी बड़ी रहनुमाई करेगा। जिस तौर से पौलुस रसूल ने बेदिली की हालत में, ऐसे हालात जब इंसान नाउमीद हो सकता है, पौलुस रसूल ने अपनी रूहानी दिलेरी के लिए और हमारी रूहानी दिलेरी के लिए इन बातों को कलमबंद किया। ये बातें उस वक्त करंथस की कलीसिया के लिए हौसला अफजाई का सबब बनी और आज मेरे और आपके लिए हौसला अफजाई का सबब हैं। यहाँ पर पौलुस रसूल ने 5 ऐसी बातों का बयान किया है जिनके सबब से उसके अंदर दिलेरी आती है, जिसके सबब से वो बेदिल नहीं है, वो मायूस नहीं है। जिनमें सबसे पहली चीज़ जिसका वो जिक्र करता है वो है ईमान। क्यों वो बेदिल नहीं है, क्यों वो मायूस नहीं है, क्यों उसके अंदर ये रूहानी दिलेरी है कि वो हर तरह के हालात में भी खुश और मुतमिन है? उसकी एक बड़ी वजह ईमान। और 13वीं आयत में वो कहता है, और चूंकि हमें वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है। कहाँ पर लिखा है? दाऊद ज़बूर 116 और उसकी 10वीं आयत में इस बात को कहते हैं कि मैं ईमान लाया इसलिए बोला। क्योंकि दाऊद नबी अपने ईमान का इजहार करते हैं कि मेरा खुदा पर ईमान है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और फिर पौलुस रसूल कहते हैं कि बस हम भी ईमान लाए और हम बोलते हैं।
تو ایمان جب خدا پر ہو تو پھر انسان کو مایوس اور بے دل نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہمارا ایمان خدا پر ہوگا تو پھر ہمیں روحانی دلیری حاصل ہوگی، پھر مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی ہم کبھی بھی گھبرائیں گے نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے خدا پر ایمان رکھا ہوتا ہے، اور جس کا ایمان زندہ خدا پر ہے وہ مایوس نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ ایمان کسی بھی چیز پر رکھا جا سکتا ہے۔ جس چیز پر آپ کا ایمان ہے وہ ثابت کرے گا کہ ایمان ٹھیک ہے یا کہ نہیں ٹھیک۔ ایمان آپ کسی بھی چیز پر انسان رکھ سکتا ہے، اور رکھتے بھی ہیں لوگ، بھروسہ وہ کسی بھی چیز پر رکھتے ہیں۔ وہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ایمان ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ اس کا مطلب اگر ٹھیک ایمان ہے تو غلط ایمان بھی ہو سکتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے اندر ایک مشنری گیا، اور اس مشنری کا نام تھا جان پین۔ وہاں پر جا کر اس نے خدا کے کلام کی منادی کی، اور ایمان کے بارے میں وہ بات کرتا تھا کہ مسیح پر، خدا پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، میں ایمان کے بارے میں کیسے ان کو بہتر طور پر سکھاؤں، سمجھاؤں، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ بیسیکلی ایمان ہے کیا چیز۔ وہ کئی طریقوں سے وضاحت کرتا، کوشش کرتا، لیکن لوگ پورے طور پر اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ ایمان بیسیکلی ہے کیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جان پین ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کرسی پر جو اس کے بیٹھنے کا انداز تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اس نے اپنے دونوں پاؤں اٹھائے ہوئے تھے، اور اگر ہم زمین پر پاؤں رکھتے ہیں، اس طرح بیٹھتے ہیں، تو شاید ہم اپنا پورا وزن کرسی پر نہیں ڈالتے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے دونوں پاؤں اس طرح اٹھائے ہوئے تھے، اور یہ بات اس کو مل گئی اس مثال سے کہ وہ بہتر طور پر لوگوں کو ایمان کے بارے میں سکھا سکے۔ اس نے کہا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ کسی چیز پر اپنا پورا وزن ڈال دیں، آپ کسی چیز پر اپنا پورا بوجھ ڈال دیں۔ اس کرسی پر ایمان ہے کہ یہ میرا بوجھ اٹھا سکتی ہے، اس کرسی پر میرا ایمان ہے کہ میرا سارا وزن یہ اٹھا سکتی ہے۔ اور اگر میں سوچوں کہ یہ کرسی تو پلاسٹک کی ہے، یہ شاید میرا سارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، میرا بوجھ زیادہ ہے، میں یہ والا بوجھ نہ ہلکا کر کے یہ نہ رکھتا ہوں ٹیبل پر، اب کرسی کو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنا آدھا بوجھ کسی اور چیز پر ڈال دیا ہے۔ شاید میں سوچوں کہ یہ پلاسٹک کی ہے، ابھی بھی کمزور ہے، میرا وزن زیادہ ہے، میرا بوجھ زیادہ ہے، میں اور اپنا بوجھ ہلکا کروں، اور میں یہ اپنا اور تھوڑا سا بوجھ کسی اور چیز پر رکھ دیتا ہوں، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ میرا پورا وزن نہیں اٹھا سکتی، میرا بوجھ زیادہ ہے، لہٰذا مجھے بوجھ ادھر ادھر ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر کرسی پر میرا پورا بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن جب میرا کرسی پر پورا بھروسہ ہے تو میں اس پر بیٹھ کر پاؤں اٹھا بھی سکتا ہوں، اور بیگ بھی اپنا گود میں رکھ سکتا ہوں، اس بھروسے کے ساتھ کہ یہ کرسی میرا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنا سارا بوجھ کس پر ڈال دیں؟ خداوند پر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کچھ بوجھ تو ڈالا ہوا ہے یسوع مسیح پر، اور کچھ بوجھ ہم نے ڈالا ہوا ہے اس پر۔ یہ کیا ہے؟ تالا۔ پرانے وقتوں میں دیہات میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو لوگ چارپائی کے ساتھ تالا باندھ دیتے تھے، چونکہ ارواح پرستی یعنی روحوں کی عبادت، پوجا پرستش اور توہم پرستی، وہم، یہ شروع سے ہمارے معاشرے میں رہے ہیں۔
لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ بوجھ مسیح پر ڈالا ہے، سوچتے ہیں شاید مسیح پورا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا اے منجی نال تالا بھی بن دیو۔ پورا ایمان پھر مسیح پر نہیں ہے، پورا بوجھ ہم نے مسیح پر نہیں رکھا، مسیح پر کچھ بوجھ رکھا ہے اور کچھ بوجھ ہم نے رکھ دیا تالے پر۔ اگر یہ نہیں رکھا تو ہم نے کچھ بوجھ رکھ دیا اس پر۔ شاید یہاں پر پڑی گیٹ کلیسیا میں ایسا نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ہاں جی، تو میں وہی لے جاؤں ہے نا، چاقو چھری، ہم ایسی چیزوں پر بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ میں پتے بھی سویرے توڑ لگا سا، میں یاد نہیں رہے ہے نا، شری دے پتے لوگ دروازے تے ہے نا۔ اب میں صبح بات کر رہا تھا اس کے حوالے سے، پتے باندھنے کے حوالے سے، تو ہمارے ایک استاد وہ بتا رہے تھے کہ یہ کچھ تو لوگ کہتے تھے کہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ نشانی ہے کہ اس گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن اصل میں اس کا جو نظریہ وہ یہی تھا کہ جب بیٹا پیدا ہوا ہے تو گھر کے دروازے پر شری کے پتے باندھ دیں تو اس سے بری روحیں اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ ایڈیاں بیچاریاں وہ ڈرپوک بدروواں ہے جڑیاں ہے نا، پتیاں تو بدروواں ڈردیاں نے ہے نا۔ کالے دھاگے بھی میں لے آیا ہاں، خیر پیچھے ہے اے کالا دھاگا بھی، یہ ساڈا ایمان ہے، ساڈا اینا مرچاں تے ایمان جڑیاں 3 دناں چ سک گئی نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پورا بوجھ مسیح پر نہیں ڈالا، ہمارا پورا ایمان مسیح پر نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان کچھ مسیح پر ہے اور کچھ ان باقی چیزوں پر، تو پھر ایمان درست نہیں ہے نا۔ ایمان تو بھاویں دے بھی رکھ چھڑو، ماچس تے رکھ چھڑو، جندرے تے رکھ چھڑو، چاقو تے رکھ چھڑو، ایمان تو آپ کسی پہ بھی رکھ سکتے ہیں، کسی پتھر پر رکھ لیں، مورتی پر رکھ لیں، کسی پر بھی لوگ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ایمان ہے تو وہ ایمان درست نہیں ہے، اور اگر ایمان درست نہیں ہے تو زندگی سے مایوسی ختم نہیں ہو سکتی، روحانی دلیری نہیں آ سکتی جب تک ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ ایمان تو ہوتا ہے لیکن غلط چیزوں پر لوگوں کا ایمان ہوتا ہے، قبروں پر لوگوں کا ایمان ہوتا ہے، مزاروں پر لوگوں کا ایمان ہوتا ہے، دھاگے، تویز، ٹونے، اس قسم کی چیزوں پر لوگوں کا ایمان ہوتا ہے۔ تو وہ ایمان تو ہے لیکن وہ غلط ایمان ہے، ہم اس کو درست ایمان نہیں کہہ سکتے۔ درست ایمان یہ ہے کہ ہم مسیح پر اپنا پورا بوجھ ڈال دیں، اس ایمان کے ساتھ کہ وہ ہماری ساری فکریں اٹھا سکتا ہے، وہ ہمارا سارا بوجھ اٹھا سکتا ہے، وہ ہماری ساری ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہے، وہ ہمارا پورے طور پر ہماری جسم، جان اور روح کا محافظ ہے۔ ہم مسیح کے ساتھ کسی اور چیز، کسی اور شخصیت، کسی اور مقدس ہستی پر ایمان اس لحاظ سے نہ رکھے کہ یہ چیزیں بھی ہمیں نجات دے سکتی ہیں۔ نجات صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ اور پالوس کو لوگ اتنی باتیں کر رہے تھے لیکن چونکہ اسے پتا تھا کہ میرا ایمان ٹھیک ہے، میرا اس پر ایمان ہے جس پر داؤد کا ایمان تھا، اور داؤد خدا پر ایمان رکھتا تھا اس لیے وہ بولتا تھا۔ پالوس کہتا ہے میرا بھی ایمان اس پر ہے اس لیے ہم بولتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، آج ہمارا ایمان کس پر ہے؟ مسیح پر؟ تو پھر اپنا پورا بوجھ مسیح پر ڈالیے۔ مسیح کے ساتھ یہ مت سوچئے کہ یہ شاید پورا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا کچھ بوجھ ہم کسی اور شخصیت پر ڈال دیں، کچھ بوجھ کسی اور مقدس ہستی پر ڈال دیں۔ نہیں، پورا ایمان مسیح پر رکھنا ہے، اور اسی صورت میں ہمارا ایمان زندہ ایمان کہلائے گا۔
दूसरी चीज़, दूसरी बात जिसके सबब से पौलुस रसूल बड़ा दिलेर था, बेदिल और मायूस नहीं था, वो थी मुर्दों में से जी उठने की उम्मीद। और 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जिलाया यानी मुर्दों में से जिंदा किया, वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जिलाएगा यानी जिंदा करेगा। पौलुस रसूल क्यों इतना दिलेर था, बेदिल और मायूस नहीं था? क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि जब हम इस ज़मीनी सफ़र को ख़त्म करेंगे, ये हमारी ज़मीनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हमारे बदन खाक के सुपुर्द कर दिए जाएंगे, तो दी एंड नहीं है, जहाँ पर सारा कुछ फिनिश नहीं हो जाता, खात्मा नहीं है, बल्कि हमारे पास ये उम्मीद है कि हम फिर से मुर्दों में से जी उठेंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अकीदे और नज़रियात दुनिया में रहे हैं और आज भी हैं, जो ये समझते हैं कि ये जो ज़िंदगी है इसको गुजारो, ये ज़िंदगी जब मौत आ जाएगी तो फिर फिनिश, उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो अबदी सज़ा और जज़ा के वजूद से इनकार करते हैं। लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि हमें ये उम्मीद है कि हम फिर से ज़िंदा किए जाएंगे, और वो खुदा पर अपने इस ईमान का इजहार करता है कि हमें ये उम्मीद है कि जिस खुदा बाप ने यीशु मसीह को मुर्दों में से ज़िंदा किया है, वही खुदा बाप हमें भी मसीह में शामिल जानकर, मसीह में शामिल जानकर। अब मसीह में शामिल कैसे होते हैं? तौबा, मसीह पर ईमान और पानी का बपतिस्मा, इसके ज़रिए से हम क्या होते हैं? मसीह में शामिल होते हैं। पौलुस रसूल ने रोमियो की कलीसिया को जब ये ख़त लिखा, उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो मसीह को पहन लिया। सो तौबा, ईमान और बपतिस्मा हमें मसीह में शामिल करता है, और जो मसीह में शामिल हैं उनके पास ये उम्मीद है कि वो मुर्दों में से जिंदा किए जाएंगे। और ये कुदरत सिर्फ खुदा के पास है। मसीह खुदावंद जब जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में मौजूद थे, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर 3 मुर्दों का हमें जिक्र मिलता है जिनको यीशु मसीह ने जिंदा किया। मिसाल के तौर पर हम उन नामों से वाकिफ़ हैं या उन शख्सियात से वाकिफ़ हैं। किन किन को यीशु मसीह ने ज़िंदा किया? यायर की बेटी को, लाजर को, और जवान बेवा का जो जवान बेटा था। खुदावंद यीशु मसीह ने इनको ज़िंदा किया। लेकिन ये जो ज़िंदा किए गए, ये फिर मर गए। जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की, तो वो मुकद्दसीन जो यरूशलेम के कब्रिस्तानों में दफन थे, उनमें से बथेरे जी उठे। जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठकर कब्र से बाहर आए, तो बहुत से मुकद्दस भी अपनी कब्रों से बाहर आए और यरूशलेम में लोगों को दिखाई दिए। लोगों ने देखा कि ये तो मर चुके थे, लेकिन अब ये फिर से जिंदा हो। ये सिर्फ एक ट्रेलर था, एक झलक थी। और बाइबल मुकद्दस में ये बताती है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, तो मुकद्दसीन जो उसमें शामिल हैं, वो अपनी कब्रों से जी उठेंगे। पौलुस रसूल के अंदर क्यों मायूसी नहीं है, बेदिल वो नहीं है? इसलिए वो इस बात से वाकिफ है कि इस जिंदगी के बाद यीशु मसीह की दूसरी आमद पर मुर्दे मुकद्दसीन अपनी कब्रों से जी उठेंगे। सो मुर्दों में से जी उठने की उम्मीद के सबब से उसको ये रूहानी दिलेरी हासिल थी। अब तीसरी बात जिसके सबब से वो मायूस नहीं था, वो था कलीसिया के फायदे का ख्याल उसको था। और 15वीं आयत में लिखा है कि इसलिए कि सब चीज़ें
तुम्हारे वास्ते हैं, ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज़्यादा होकर, बहुत से लोगों के सबब से फजल क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब कलीसिया, जब ईमानदार लोग और गुनाहगार लोगों तक पहुंचेंगे, उन लोगों तक जो अभी तक तौबा याफ्ता नहीं है, जो मसीह की खुशखबरी से वाकिफ़ नहीं है, जब कलीसिया उन तक पहुंचेगी, जब ईमानदार उन तक पहुंचेंगे और उनको भी मसीह के फजल में ले आएंगे, उनको भी खुदा के घराने में शामिल कर लेंगे, तो फिर हमें इस बात को जानना है कि इससे कलीसिया का फ़ायदा है, इससे कलीसिया की बढ़ोतरी है, इससे खुदा की जो फैमिली है, खुदा का जो ख़ानदान है वो ग्रोथ करता है, खुदा का ख़ानदान बड़ा होता है। और पौलुस की दिलेरी की एक बड़ी वजह यह है कि खुदा कलीसिया के ज़रिया से, ईमानदारों के ज़रिया से और लोगों को अपनी बादशाहत में लेकर आता है। ईच वन रीच वन, ये एक फार्मूला मैंने पिछले साल दिया, शायद कुछ लोगों को याद हो, कि हर एक शख्स कोशिश करे कि कम से कम एक रूह को मैंने एक साल में खुदा के पास लाना। हर साल का हमारा ये टारगेट होना चाहिए, हर शख्स का, हर भाई का, हर बहन का, हर एक ईमानदार का ये टारगेट होना चाहिए कि मैंने साल में कम से कम एक, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम मैंने एक भाई को, एक बहन को मसीह के पास लेकर आना है। इससे क्या होगा, खुदा का ख़ानदान बढ़ेगा, खुदा की कलीसिया में और लोग शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए पौलुस दिलेर है, मायूस नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि इससे कलीसिया की बढ़ोतरी है। पहली चीज़, अपने ईमान की वजह से उसको रूहानी दिलेरी हासिल है। दूसरी बात, मुर्दों में से जी उठने की उम्मीद है। तीसरी चीज़, कलीसिया के फ़ायदे का ख्याल है। और चौथी चीज़, उसे पता है कि ना सिर्फ हमारी जिस्मों के लिए बल्कि हमारी रूहों के लिए खुदा ने अच्छी फसल तैयार कर रखी है। 16वीं आयत में वो कहता है कि इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि वो हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है। याद रखिए कि बुरे आदमी के दिल की हालत, बातनी हालत रोज़ बरोज़ बुरी से बुरी होती जाती है, लेकिन जो रूहानी आदमी है, जो खुदा परस्त आदमी है, उसके दिल की हालत अच्छे से बेहतर, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाती है। अगर हम गुड हैं तो फिर क्या, उसके बाद बेटर, अच्छा वेरी गुड है ना, गुड हैं तो वेरी गुड, वेरी गुड हैं तो उसके बाद एक्सीलेंट, उसके बाद सुपर एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। क्या है कि हम जो ईमानदार है, जो खुदा परस्त है, उसकी रूहानी जो हालत है वो डे बाय डे, रोज़ बरोज़ उसकी तजदीद होती है, वो नई बनती है, रोज़ बरोज़ उसकी हालत पहले से बेहतर होती है। और हमें इस बात पर गौर करना है, सोचना और समझना है कि क्या हमारी जो रूहानी ज़िंदगी की हालत है वो दिन ब दिन बेहतर हो रही है, हम गुड से वेरी गुड की तरफ जा रहे हैं, या कहीं खुदा न खास्ता गुड से बैड तो नहीं हो रहे, या वेरी बैड की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं हम बुरे से मजीद बुरे तो नहीं होते जा रहे। लेकिन ये रूहानी दिलेरी की एक वजह है कि खुदा परस्त लोग, रूहानी लोग जो हैं वो दिन ब दिन बेहतर होते हैं, वो गुड से फिर बेटर, बेटर से फिर बेस्ट, परफेक्शन की तरफ जाते हैं, कामलियत की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें उन लोगों में नहीं होना जो आज बुरे हैं और कल उससे भी ज़्यादा बुरे होंगे, परसों उससे भी ज़्यादा बुरे होंगे, बल्कि हमें ऐसे लोग बनना है कि अगर आज वो अच्छे हैं तो आने वाले कल में वो ज़्यादा अच्छे हों, उसके मज़ीद आने वाले कल में वो उससे भी ज़्यादा अच्छे होते चले जाएं। यानी जो हमारी बातनी इंसानियत है, जो हमारी रूहानी हालत है, वो जिस्मानी हालत वक्त के साथ साथ कमज़ोर पड़ती है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम बुजुर्गी की तरफ जाते हैं, हमारी जिस्मानी जो हालत है ये कमज़ोर हो जाती है,
इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कमज़ोर पड़ जाता है, बीमारियां ज़्यादा हमें आद आती हैं। लेकिन वो हमारी जिस्मानी हालत इस तरह हो सकती है, लेकिन हमारे दिल की हालत ये बुरी से बुरी नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। हर रोज़ हमारी तजदीद होनी चाहिए, हर रोज़ हमें नया बनना है, बेहतर से मज़ीद बेहतर होना है। और आखिरी बात, जिस वजह से पौलुस रसूल बेदिल नहीं है, उसको अबदी ज़िंदगी और हमेशा की मुबारक हाली का ख्याल है। उसको पता है कि ये जो देखी हुई चीज़ें हैं ये तो चंद रोज़ा हैं, ये जो देखी हुई चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, विजिबल है, हम आंखों से देख सकते हैं, ये तो चंद रोज़ा हैं, ये तो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो अनदेखी चीज़ें हैं, जो खुदा का जलाल है जिसमें हम शामिल किए जाएंगे, वो अबदी है, इटर्नल है, ना ख़त्म होने वाला है। इस वजह से जब वो कंपैरिजन करता है, मुवाजना करता है, तो वो कहता है कि ये जो मुसीबत आज हम उठा रहे हैं, चाहे वो बीमारी की मुसीबत है, चाहे वो बेरोज़गारी की मुसीबत है, चाहे वो ख़ानदानी मसाइल की मुसीबत है, या कारोबारी मुश्किलात की मुसीबतें हैं, वो कहता है ये जो आज की मुसीबतें हैं ये तो हल्की सी हैं, लेकिन जो जलाल हमें मिलने वाला है वो आज हद भारी है, वो बहुत बड़ा है जिस जलाल में हम दाखिल होने वाले हैं। ये दुनिया की मुसीबतें चंद रोज़ा हैं, ये दुनिया की चीज़ें भी चंद रोज़ा हैं, आज हैं कल निकल सकती है हमारे हाथ से। इस साल हमने नहीं देखा क्या कि सैलाब के सबब से लोगों की लाखों और करोड़ों की प्रॉपर्टी एकदम उनके हाथ से निकल गई। ये दुनिया की चीज़ें जो नज़र आती हैं ये तो चंद दिन की हैं, ये कब हमारे हाथ से निकल जाए हम नहीं जानते। लेकिन भाई और बहनों, वो जलाल जो मुकद्दसीन को आसमान पर मिलने वाला है वो अज़ हद भारी है, वो अबदी है, ना ख़त्म होने वाला जलाल है जिसमें कलीसिया दाखिल की जाएगी। इसलिए वो कहता है या दुनिया दिया मुसीबत परेशानियां तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत, वो कहता है ये तो हमें हल्की सी मुसीबत महसूस होती है। आला पौलुस रसूल ने जो मुसीबतें उठाई वो हल्की नहीं थी। 3 वारी तो समुंदर चौदा जहाज ही गर्क हो गया सी, कितनी बार उसको कोड़े लगाए गए, कितनी बार उसको कैद खाने में बंद किया गया, संगसार उसको किया गया, लान तान उसको की जाती थी, उसको मारा पीटा जाता था। लेकिन वो कहता है ऐ सारियां मुसीबतां छोटियां ने, हल्कियां ने, या कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक अबदी जलाल, भारी जलाल, वो अबदी खुशी जिसमें कोई बीमारी नहीं है, जिसमें कोई मुसीबत नहीं है, जिसमें खुशी ही खुशी है, राहत ही राहत है, इत्मीनान ही इत्मीनान है, और जिसमें हम खुदा की हुजूरी में होंगे, हम उसके लोग होंगे और वो हमारा खुदा होगा। उस अबदी जलाल की उम्मीद की वजह से, उस अबदी मुबारक हाली की वजह से वो मायूस और बेदिल नहीं है। जी भाई और बहनों, अगर आज हम अपने हालात के सबब से मायूस हैं, चाहे वो हमारे माली हालात हैं, चाहे वो हमारे ख़ानदानी हालात हैं, या हमारी रूहानी हालत है, किसी भी वजह से अगर आज हम बेदिल हैं, मायूस हैं, नाउमीद हैं, तो खुदा का कलाम हमें यह तसल्ली बख्शता है कि हमें उस रूहानी दलेरी को हासिल करना है जिसको पौलुस ने हासिल किया। इतराज़ात उस पर किए गए, उसको उस पर सवालात उठाए गए, लेकिन वो अपने ईमान की वजह से, वो मुर्दों में से जी उठने की उम्मीद की वजह से, वो कलीसिया के फ़ायदे और तरक्की के ख्याल की वजह से, वो रूहों की अच्छी फसल की वजह से, और उस दायमी और अबदी मुबारक हाली की वजह से, खुदा की उस मिरास, उस बादशाही की वजह से वो दलेर बन गया। उसने अपने अंदर मायूसी को नहीं आने दिया, वो बेदिल नहीं हुआ, हिम्मत नहीं उसने हारी, बल्कि उस काम को, उस खिदमत को करता रहा। आज अगर आप मायूस हैं, नाउमीद हैं, तो जिंदा ईमान अपने अंदर लाइए, अपना सारा वज़न, अपना सारा बोझ मसीह पर डाल दीजिए, इस ईमान के साथ कि वो अपनी सारी फिक्रें, आपकी सारी फिक्रें वो उठा सकता है।
कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम ये सोचें कि ये मसीह नहीं कर सकता, ये शायद कोई और करेगा, और हम किसी और तरफ रुख कर लेते हैं। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुकम्मल भरोसा खुदा पर रखें, पूरा ईमान खुदा पर रखें। वो आपकी भी हिफाजत करता है, वो आपके नेक पैदा होने वाले बच्चों की भी हिफाजत करता है, वो आपके उन बच्चों की भी हिफाजत करता है जिनकी शादी की तारीख मुकर्रर हो जाती है, और वो सारी ज़िंदगी हमें बचपन से लेकर कब्र तक और कब्र के बाद भी वो हमें अपने हाथों पर उठाए फिरता है। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।